I'm associated with this institute, I think last 2 years, and 1 year ago, I was also a part of a faculty of Global Spoken. You must welcome Global Spoken English. First of all, I would like to congratulate all the students who participated here. Those who not participate in this competition. So I would like to suggest and encourage them and bless them if they will participate in next competition. And this kind of competition when held in any institution or any place, this competition will give you some sort of confidence. Don't think it as a challenge or academic competition. It's an opportunity. It's an opportunity to see where you stand. ये आपके लिए एक अवसर है कि आप कहाँ खड़ा हैं. Here you got so many topics, so many issues where you make your views, your ideas, your thoughts. And there are those issues, those who are related to your future, who are related to your country, who are related to your career, who are related to your society. We discuss about so many things, so many issues, like girls issues, like the drawings, like our political system, importance of education, importance of teacher, importance of computer, importance of English language. All these things are very necessary in our life. Some students raise their points, and now this political atmosphere, a political situation, a kind of political environment is going these days in our country. Some part of people afraid, some religion people afraid, some sort of fear going in their mind. But I think nobody has to fear. This is your land. You are the son of this land. You are the daughter of this land. Nobody can nobody have a right to abstract from this land, or you have to send anywhere else. We have a great constitution. Our constitution have a great respect around the world. All the democratic countries, when they make a new democratic country, when they going to make their constitution, they look at our constitution. Everyone you know that our constitution is the biggest constitution of the world. And kind of tradition, kind of culture, kind of heritage, a kind of great history we have. That's why we recognize as the greatest country of the world. Or because of our cultural heritage, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जो रीति रिवाज परंपरा, जो हमारी संस्कृति है, उसी की वजह से हम पूरे विश्व में जाते हैं. कुछ गलत लोग, या हम कहें कि जो बेवकूफ सियासतदान है, उनको मैं बेवकूफ कर,
जो हमारे इतिहास से खेलते हैं, हमारे गौरव को खेलते हैं, और जो बेवकूफ और गलत निर्णय लेते हैं, जिसके कारण पूरे समाज को जो है सफर करना पड़ता है, परेशानियां होती हैं, क्योंकि उनके गलत सोच के कारण ही गलतियां होती। तो किसी को किसी तरह का फिक्र करने की जरूरत नहीं। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हम और ऐसे जो गलत सियासतदान हैं, जो गलत लोग हैं, उन्हें हमें सीखना, हमें जागना होगा। हम कैसे जानेंगे और हम कैसे समझेंगे क्या गलत है क्या सही? आप अपने इतिहास को, जो कि देखिए आज साइंस का समय है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अपने एजुकेशन पे आज पिछले चंद सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आपको जिस तरह के अवसर मिलने चाहिए, जिस तरह के प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए एजुकेशन के लिए, उस प्लेटफॉर्म को छीन लिया जाए। सरकारें नहीं चाहती कि आपको अच्छा अवसर मिले, आपको अच्छे संस्थान मिले, आपको बेहतर एजुकेशन सिस्टम मिले, जिससे कि आप अच्छी शिक्षा ले सकें। और ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिसके बीच में आप फंस करके अपने भविष्य को भूल जाए। सही पथ का आप चुनाव न करें, सही रास्ते का आप चुनाव न करें, आप एक भ्रम में रहें, एक डर में रहें, इस तरह की नीतियों का निर्माण किया जाए। क्योंकि आप पढ़ेंगे, आपके पास अच्छी शिक्षा होगी, तो आप सही और गलत की पहचान कर सकते। और जब आप सही और गलत की पहचान कर लेंगे, तो ये आपके जो सरकार में बैठे लोग हैं, जिनको हम और आप बनाते हैं, वो आपका उपयोग करके अपने लिए अवसरों को बनाते हैं, लेकिन आपके अवसरों को समाप्त कर देते हैं। और यही हो रहा है। आप एक नौकर बन के रह जाओ, 2,000, 5,000 के 10,000 की नौकरी के लिए बस तड़पते रह जाओ। आज क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, एक छोटा व्यवसायी के लिए अवसर नहीं है कि वो व्यवसाय कर सके, आपके लिए काम के अवसर नहीं है। आज एक युवा रोजगार के लिए क्या है, दर बदर घूम रहा है। उसके भविष्य के वो पढ़ा है, उसके पास हाईली एजुकेशन है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि उसका रोजगार सुनिश्चित। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पे आप अपने आप को आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंड मान सको, आत्मनिर्भर मान सको कि हाँ मैं आत्मनिर्भर हूं। या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाए? जब हम लोकतंत्र में होते हैं या लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में ये है कि सरकार राज्य की जो लोग हैं, हम देश की बात करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस के जो लोग स्टूडेंट जानते हैं कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य मतलब देश होता है जिसमें राज्य के नागरिक। राज्य क्या काम होता है कि राज्य के लोगों के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करे। राज्य के जो जनता है उसके लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करे, उसकी हर जरूरतों को पूरा करे, तभी वो राज्य कहलाता है या राजा कहलाता है या शासक। जब शासक ही या शासन व्यवस्था ही
आपको किसी तरह का अवसर न दे, आपके अधिकारों को छीन, आपके लिए ऐसे अवसरों का निर्माण न करे कि जहां पे आप अपने जीविका को प्राप्त न कर सकें, आपके लिए कोई ऐसा अवसर ही न हो, तो वो शासन व्यवस्था नहीं चले। तो हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को जानने की जरूरत है। और साथ में मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपको इन्वायरमेंट 5वीं कक्षा से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, हायर क्लास तक पढ़ाया जाता है सिलेबस में ना? क्यों है? वी बिकम अवेयर अबाउट आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक। उसी तरह से हमारे सिलेबस में ये भी होना चाहिए कि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो जनता को कानून के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा मिला है, वो भी 5वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में समाहित किया जाए, जिससे हर बच्चा अपने कानूनी अधिकार को जान सके। और जिस दिन हमारे देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया, उस दिन ये सियासतदान हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकते। और कम से कम मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि आप भी कोशिश करिए कि अपने कानूनी अधिकारों को जानें। हमारा कानूनी अधिकार जैसे आप वोट देने का आपको अधिकार है। इट इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिकल राइट्स। वोट देने का अधिकार है ना? अब वोट देने का जो अधिकार हमें मिला है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। वोट देकर हम क्या करते हैं? वोट तो दे दिया, किसको दिया? हाँ, किसको दिया? आप एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं ना? वो क्या है? दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव। वो आपके प्रतिनिधि हैं, जो देश के सबसे बड़े मंच पर, आपके पार्लियामेंट में या आपके राज्य के विधानसभा में आपकी बातों को रखते हैं, आपकी समस्याओं को रखते हैं। आपकी क्या समस्या है? तो वो समस्याएं आप किसको चुन रहे हैं? क्या जिस व्यक्ति को आपने चुना वो ऐसा है कि आपकी समस्याओं को आपके विधानसभा में या आपके संसद में वो रख सकता है, या आपके लिए सही प्लानिंग कर सकता है, सही योजनाओं का निर्माण कर सकता है? क्या आपने वैसे किसी व्यक्ति को चुना है? तो जब आप एक एक चीजों के बारे में जानेंगे और जब आप अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है, हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है। आज पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में क्या है? आज के जो युवा हैं, उनको पबजी से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से और इन बाकी सारे चीजों से, उनके अलावा वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे राजनीतिक अधिकार क्या है? हमारे सामाजिक अधिकार क्या है? हमारे सामाजिक कर्तव्य क्या है? आज हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना? क्यों? कि हमारा समाज से जुड़ाव नहीं है। राजनीति, अरे हम कहते हैं गंदे है, पॉलिटिक्स गंदी है। अरे पॉलिटिक्स गंदी है तो पॉलिटिक्स तो ही आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। आप कहोगे कि हमें देश से क्या लेना है? अरे हम तो व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, हमको इंटरनेट मिल रहा है, अब क्या चाहिए? लेकिन आपकी राजनीति को कौन सुधारेगा? कोई बाहर से आएगा? हाँ, लेकिन ये जो राजनीतिक दल है, आपके यहाँ बाहर के जो नेता हैं, उनके जो लोग हैं, वो आपके क्षेत्र का कोई नहीं है, आपको चुना जाता है। बाहर से कोई ला करके प्रमोट करके रख दिया जाता है और आप उसको चुन देते हो।
और जब ऐसे लोग जो आपके घर से, आपके समाज से, आपके क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, जब ये लोग जाते हैं आपके संसद में, तब ये आपकी बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, वो अपने लिए अवसर बनाते हैं, अपने लिए मौका बनाते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके, आप नहीं। जब आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा, आपकी समस्याओं को जानता होगा, तब वो आपकी समस्याओं को जाकर के देश की संसद में होगा। और एक चीज और, आज जिस तरह की राजनीति है, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सिर्फ हमारे ही देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की, विश्व का राजनीतिक मंच ही ऐसा बन चुका है। जब उन चीजों के बारे में आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये ऐसी व्यवस्था को बना रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ वो कुछ बड़े लोग, 2 4 5 लोग, 10 लोग, ये मत सोचिए कि वो हजारों या लाखों की संख्या में 10 से 15 लोग हैं जो अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। और जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप सोचते हो कि ये फला हमारी, ये फला हमारे, फला हमारे, कोई आपका नहीं है। वो चुने हुए 5-10 लोगों के हैं। इस भ्रम में भी नहीं पढ़ना आया था। और ये क्यों भ्रम में पड़े? क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं। मेरा देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी और इस सारी चीजों के नहीं, मैं एजुकेशन की बात करना चाहता हूँ। इन सारी चीजों को कहने का मतलब कि जब आप एजुकेटेड होंगे, आपके पास एजुकेशन होगी, तो आप क्या सही है, क्या गलत है, उसका सही है। और इवन अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये गुमान है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एजुकेशन है। अभी किसी बच्ची ने कहा सर्टिफिकेट होना नहीं। हम तो if we get a certificate from any recognized institution, that means I am educated? No. How you are utilizing your education? आपने अपने एजुकेशन का कैसे यूटिलाइज किया? क्या प्रयोग किया आपने उसके साथ? जब उसका प्रयोग करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे सोसाइटी के साथ और बाकी जो विषय है उसके साथ, जब उसको जोड़ करके कनेक्ट करके जब आगे बढ़ेंगे, तब जो है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप लोग एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, वो चाहे आपकी मदर लैंग्वेज हो या आपका इंटरनेशनल, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि दूसरे कुमार की साथ पक्षी है, निज भाषा के निज गौरव का, निज माटी का अभिमान नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपनी भाषा और अपनी मिट्टी पे गुमान कीजिए, और बिना अपनी भाषा के, बिना अपनी मातृभाषा के आप किसी दूसरी भाषा को भी नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी को भी उतना महत्व देंगे, अगर महत्व देंगे तो दोनों को आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर, एंड इन एडवांस आई वुड लाइक टू गिव यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया वर्ष मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियां आपके दामन में आए, आप वो हर खुशी पाएं और जो चीज आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।